حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حج قبول کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس بھی مومن کا حج قبول کر لیا وہ اپنی گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی رحم سے نکلنے کے بعد میں گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور سخت وعید ہے ایسے ایمان والے کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج کے فریضے کو انجام نہ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے، وہ چاہے تو نصرانی ہو کے مرے، چاہے تو وہ یہودی ہو کے مرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل اعتبار یا معتبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مسلمین اکرام، ذی الحج کا یہ مہینہ رواں دواں ہے، اور جب ذی الحج کا نام آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے کعبۃ اللہ، حجاج اکرام احرام باندھے ہوئے، مینا اور مزدلفہ کے وہ تمام سین آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے اسلامی کیلنڈر کا یہ مہینہ منسوب ہے ذی الحج کے نام سے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے اور اسی مہینے کی کچھ تاریخیں متعین ہے جس میں حج ہو سکتا ہے اور حج کا فریضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان تاریخوں کے علاوہ اسلامی کیلنڈر کے کسی اور مہینے میں اور کسی اور تاریخوں میں حج نہیں کیا جا سکتا، جس میں آج کا دن، آج وقوف عرفہ کا دن ہے، اور یہ حج کے تمام ارکان میں لازمی رکن ہے۔ اگر جو حاجی 9 تاریخ کو وہاں نہیں پہنچتا ہے اس کا حج ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلے 10 دن جو ہم پہلا عشرہ کہتے ہیں جس کو ذی الحج کا، یہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے افضل ترین عشرہ ہے۔ 2 عشرے ایام کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے، ذی الحج کا پہلا عشرہ 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، اور راتوں کے لحاظ سے آخری عشرہ رمضان المبارک کا 21ویں شب سے لے کے تو آخر تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن کو بانٹ دیا ہے، دن کے اوقات ذی الحج اور رات کے اوقات رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ اور جس طریقے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی ایک رات ہے جو سب سے افضل ترین رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، اس پہلے عشرے میں ایک دن جو ہے وہ سب سے افضل ترین دن قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ہے عرفہ کا دن۔ اور اس کی فضیلت اور اس دن کیا کرنا چاہیے میں اپنے خطبے کے باقی والے حصے میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آؤں گا، لیکن حج کے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حج قبول کر لیا گیا،
اللہ ताला ने जिस भी मोमिन का हज कबूल कर लिया वो अपनी गुनाहों से ऐसे ही पाक साफ हो जाता है जैसे बच्चा अपनी माँ की रहम से निकलने के बाद में गुनाहों से पाक साफ होता है। अल्लाह अकबर। ये एक बहुत बड़ी फजीलत है और ये अल्लाह ताला की इनायत है तमाम ईमान वालों पर कि वो हज को जाएं और उस तरीके से हज अदा करें जिस तरीके से हज अदा करने का हक है, और वो उसके ऊपर मैं आऊंगा। और अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा कि मेरी उम्मत में वो लोग जो हज करने की इस्तिताअत रखते हो, हमारे जितने फराइज है उसमें से ये एक फरीजा ऐसा है कि जिसमें इस्तिताअत जरूरी है, जिस्मानी इस्तिताअत और माली इस्तिताअत भी। तो सख्त वईद है ऐसे ईमान वाले के लिए कि जो इस्तिताअत रखते हुए भी हज के फरीजे को अंजाम न दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह उससे बेनियाज है, वो चाहे तो नसरानी होके मरे चाहे तो वो यहूदी होके मरे। कहने का मतलब ये है कि उस शख्स का इस्लाम अल्लाह ताला के नजदीक काबिले एतबार या मोतबर नहीं है। हम में से बहुत सारे, हमारी उम्मत में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे बदनसीब जो कहां कहां घूमते हैं, फिरते हैं, सयाहत करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, लेकिन अभी तक हज का फरीजा अदा करने से महरूम है। इन लोगों के लिए ये वईद, ये तंबीह, ये वार्निंग बहुत जबरदस्त है कि उनका इस्लाम अल्लाह ताला के नजदीक मोतबर नहीं है जब तक वो हज के फरीजे को अदा नहीं कर लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि आपने उस जमाने की तमाम रसूमात को इबादत में तब्दील कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश और उस जमाने में जितनी रस्में थी उन सब को इबादत में तब्दील कर दिया। और ये उम्मत मुस्लिमा का जवाल है कि वो तमाम इबादतों को रसूमात में तब्दील कर देती है। हर इबादत एक रस्म है हमारे नजदीक, उस इबादत से रूह गायब है, उस रस्म से रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रहे। यही हाल इस उम्मत का है। और मैं इस पे कुछ वक्त लूंगा मैं आपका कि किस तरीके से आज उम्मत का क्या हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, इनफैक्ट हज के जो एक एक रुकन है, एक एक रुकन में, एक एक अमल में इतनी मानवियत है, इतनी मीनिंगफुलनेस है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। हम उसको एक बस रस्म समझ के जो है हम अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली जुमा में मेरे भाई मिशल ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवे के बारे में बहुत काफी और शाफी, बहुत कम वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, उनकी जिंदगी से मुतालिक बहुत सारी बातें रखी। इसलिए मजीद उस पर कहने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नुक्ता है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा और आपकी तवज्जो उसकी तरफ मैं मबजूल कराना चाहूंगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 127 और 128, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहिम और इस्माइल मिलकर बैतुल्लाह की दीवारों को उठा रहे थे तो साथ में ये दुआ करते जा रहे थे कि या अल्लाह तू हमारे इस काम को कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। बड़ा अजीब नुक्ता है। मुफस्सिरीन कहते हैं और खासतौर हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा नुक्ता है इसमें कि क्या कर रहे थे वो इस धरती पर, इस जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला मरकज तौहीद, सबसे पहली मस्जिद बना रहे थे, और वो भी अल्लाह के
हुक्म के मुताबिक वो जगह बता दी गई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि किस जगह पर काबतुल्लाह के बुनियादें मौजूद थी जिनको ऊपर उठाया गया, जैसा कि कुरान मजीद की ये जुमले में भी आता है। इसके बावजूद कोई खुशफहमी नहीं है, कोई मुगालता नहीं है कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, मैं ये जो अमल कर रहा हूं, ये जो मैं मस्जिद बनाने का काम कर रहा हूं, ये अल्लाह के नजदीक यकीनन और यकीनन जो है वो क्या कर लिया जाएगा, कबूल कर लिया जाएगा। कबूलियत इबादत, कबूलियत अमल सालेह के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई खुशफहमी नहीं थी, और इसलिए दुआ कर रहे थे दोनों मिलके कि अल्लाह ताला ये काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस काम को तो क्या कर ले, कबूल कर ले। और हमारा क्या हाल है, हम 2 रकत नमाज पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसका तो सवाब हमको मिल ही गया, अल्लाह ताला ने जो है हमारे नाम अमाल में इसका सवाब लिख दिया। हमने जो भी नेक काम किया उसके बारे में हमको चंदा फिक्र नहीं होती कि आया उस नेक काम, उस इबादत में उसकी रूह भी शामिल थी या नहीं शामिल थी। हम बहुत मुतमईन हो जाते हैं कि हम जो भी इबादत कर रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, रोजे में झूठ बोल रहे हैं, रोजों में हमारी नजरें जिना कर रही हैं, रोजे में जो है हम और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी इफ्तार के वक्त हमें ये इत्मीनान होता है कि हमारा रोजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्या कर लिया जाएगा, कबूल कर लिया जाएगा। तो ये पहला नुक्ता है जो कुरान मजीद की इस आयत से हम सब के लिए एक बहुत जबरदस्त सबक है जो हमको सीखना चाहिए। फिर उसके बाद में उसी के अंदर जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है और सबको सीखना चाहिए। इसके अंदर 2 नुकात है। अल्लाह के खलील ये दुआ करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। क्या दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह ताला हमें मजीद फरमा बरदार बना। अल्लाहु अकबर। ये कौन दुआ कर रहा है? मेरे जैसा गुनहगार नहीं कर रहा है, ये वो हस्ती कर रही है जो अल्लाह ताला की तरफ से जितनी आजमाइशों में डाल दिया गया उतनी आजमाइशों में उसने कामयाबी के साथ में वो निकल गया। और आखिरी आजमाइश तो ये थी कि उसने अपने बच्चे की, वाहिद इकलौते बच्चे की कुर्बानी देने से भी तगरेज नहीं किया वो, लेकिन अपनी फर्मा बरदारी के ऊपर अभी तक मुतमईन नहीं है। वो कहता है कि ए अल्लाह ताला हमें और ज्यादा फर्मा बरदार बना। अगर उनकी फर्मा बरदारी लायक अल्लाह के नजदीक जो है कबूल नहीं है, तो हमारी फर्मा बरदारी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, ये सोचिए। हमारी फर्मा बरदारी, अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजीद फर्मा बरदार बनने की दुआ करते हैं और उनको ये लगता है कि शायद मेरी फर्मा बरदारी जो है वो अल्लाह ताला के नजदीक काबिल कबूल नहीं है, तो मैं सोचूं, आप सोचे, जो नाजरीन इसको सुनेंगे वो सोचे कि हमारी फर्मा बरदारी और हमारा इस्लाम किस कैटेगरी के अंदर और किस कैटेगरी के अंदर हमने रखना चाहिए। और उसके बाद की दुआ जो है, और मेरी ज़ुर्रियत में से उम्मते मुस्लिमा पैदा कर। किसके लिए तड़प है? अपनी ज़ुर्रियत के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरी औलाद में से एक फर्मा बरदार उम्मत पैदा फरमा। और इसीलिए हजरत इस्माइल की शाख से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसत किया गया या मबऊस किया गया, क्योंकि उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हम में से क्या कोई अपने औलाद की तरबियत और उसकी आखिरत के लिए उतना ही तड़पता है? क्या वो दुआ करता है? क्या वो उसके लिए कोशिश करता है जितनी ट्यूशन क्लासेस लगाने की कोशिश करता है? या ये ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरे बच्चे को बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में से किस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा और मैं किसका किसका वसीला लगाऊं, मैं कौन से कोटे में से अपने बच्चे के लिए इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हासिल करूं?
बहुत कुछ करते हैं ना भाई हम अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या कभी हम अपने बच्चों की आखिरत के बारे में, उनको जहन्नम की आग से बचाने के लिए, उनकी दीनी तरबियत के लिए क्या हम इतनी जुस्तजू करते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, जो कि हमको सूरह तहरीम में हुक्म दिया गया कि ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, ये हुक्म दिया गया है, फर्ज है हम सब पर। ये 3 बातें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब मैं आता हूं जो मैंने पहली बात बयान किया आप लोगों के सामने कि हज का एक एक रुकन एक सबक है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने की तमाम रसूमात को इबादत में तब्दील कर दिया, और इस उम्मत मुस्लिमा ने तमाम इबादत को रसूम में तब्दील कर दिया। वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए, जब हम सीरत की किताबें पढ़ते हैं, और इवन कुरान मजीद के अंदर आया है कि ऐसा नहीं है कि अहले कुरैश नमाज नहीं पढ़ते थे। अहले कुरैश काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ते थे। कुरान कहता है कि उनकी नमाज क्या होती थी, सीटी बजाना और तालियां बजाना, सीटी बजाना और तालियां बजाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी नमाज को एक ऐसी इबादत में तब्दील कर दिया कि उस इबादत में बंदा अपने खुदा से, अपने रब से इतना करीब हो जाता है कि वो अपने रब से क्या करता है, गुफ्तगू करता है, मुनाजात करता है। उसका ताल्लुक बिल्लाह का सबसे पहला और मजबूत जो जरिया है और वो इबादत है, वो क्या है, नमाज। और आज हमारी नमाज क्या वैसी नमाज है, वैसे खुशू और खुजू वाली नमाज, ये हमको सोचना है। या हम आके मैकेनिकली एक आदत पड़ गई है, हम एक इबादत करते हैं जिसमें बंदगी का बे गायब है, ये एक आदत बन गई है। इबादत से क्या बन गई है, आदत बन गई है, क्योंकि उसमें बंदगी का बे उसमें से गायब है। दूसरी रस्म जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत बनाया कि उस जमाने में भी अहले कुरैश अपने बुतों के ऊपर क्या करते थे, कुर्बानी करते थे और खून उसको चढ़ाते थे बुतों को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस कुर्बानी को जो नेकी और इबादत का दर्जा दिया, और ये कहा कि ये तुम्हारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला को ये महबूब है कि हम उसके रास्ते में, उसकी रजामंदी के लिए अपनी महबूब तरीन चीज को क्या कर दें, कुर्बान कर दें। आज हमारे लिए कुर्बानी करना बहुत आसान हो गया है। आज 2000 रुपये में कुर्बानी का एक हिस्सा आता है, 15-20 हजार रुपए के एक अंदर बकरा आता है, 2000 रुपए निकालो, कुर्बानी अदा हो गई। 15,000 रुपए का बकरा लाओ, बकरे को काटो, कुर्बानी हो गई। उसकी जो रूह है उसके पीछे, वो रूह आज हमको कहीं नजर नहीं आती, जिसके ऊपर मैं वापस आऊंगा। मैंने ये कहा था कि हज का एक एक रुकन, उसकी मीनिंगफुलनेस, उसकी मानवियत आपको देखेंगे। तवाफ उस जमाने में भी किया जाता था, उस जमाने में बरहाना तवाफ किया जाता था। अहले कुरैश तवाफ करते थे, और उस जमाने में बहुत सारे लोग हज बैतुल्लाह के लिए आते थे, क्योंकि वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ा है। बरहाना तवाफ करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शाइस्तगी के साथ में और हया और शर्म के साथ में तवाफ करने का तरीका बताया। और ये जो तवाफ है ना, ये तवाफ, ये काबतुल्लाह के गिर्द घूमना जो है 7 चक्कर, ये कोई मैकेनिकल चक्कर नहीं है। ये चक्कर या इस काबतुल्लाह के गिर्द घूमते हुए इंसान के जहन में, उसके शऊर में और उसके लाशऊर में ये बात सख्त होनी चाहिए कि ये दीन जिसका ये सबसे बड़ा शईरा है काबतुल्लाह, ये मरकज तौहीद है। हमारी पूरी जिंदगी जो है इसी दीन के इर्द गिर्द जो है वो क्या रहे, घूमती रहे। ये मतलब है तवाफ का, कि दीन जो है हमारे जिंदगी का क्या बन जाए, मरकज बन जाए। अवर लाइफ शुड बी रिलीजियो सेंट्रिक।
दीन के इर्द गिर्द घूमने वाली जो है हमारी जिंदगी बन जाए, और इसीलिए जो है वो हमसे तवाफ कराया जाता है। फिर दूसरी बात, सबसे पहले जब हम हज का इरादा करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले जो है हम एहराम पहनते हैं। तो जब हम एहराम पहनते हैं तो सबसे पहली याद जो ताजा होती है वो किस बात की याद ताजा होती है? अपने कफन की। क्योंकि कफन में भी हम इसी तरीके से दो चादरों के अंदर जो है क्या किए जाते हैं? लपेट दिए जाते हैं। तो जब हाजी एहराम बांधता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि एक रोज आने वाला है कि मेरा मुर्दा जिस्म इसी तरीके से दो सफेद कपड़ों में लपेट दिया जाएगा। मुझे अभी से उसकी कितनी फिक्र करना है उस दिन की। आज तो मैं एहराम अपने हाथ से बांध रहा हूं, लेकिन कल एक दिन आएगा जब मुझे ये दो सफेद कपड़ों के लिए किसी और का क्या होना पड़ेगा? मोहताज होना पड़ेगा। और उस दिन मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं उस दिन इस्तग़फ़ार नहीं कर सकता, उस दिन मैं माफी नहीं मांग सकता, मैं उस दिन 2 रकात निफिल नमाज नहीं पढ़ सकता। मैं आज जो है मैं आज कर सकता हूं। और फिर सबसे पहला कलमा जो हम पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप लोगों से जो लोग गए हैं हज के लिए, वो जब पूरा कारवां हाजियों का जोर जोर से लब्बैक पढ़ते हुए जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहते हैं हम? और क्यों इतनी मर्तबा लब्बैक पढ़ाया जाता है? कभी आपने गौर किया क्यों इतनी मर्तबा लब्बैक पढ़ाया जाता है? लब्बैक मैं हाजिर हूं, ला शरीक लक लब्बैक, ए अल्लाह ताला तेरा कोई शरीक नहीं है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क, तेरे ही लिए तमाम तारीफें हैं, तेरे ही तमाम नेमतें हैं और तेरे लिए ही ये तमाम इख्तिदार है, तेरा कोई शरीक नहीं है। आपने अंग्रेजी का एक मुहावरा सुना है, हैमर द थॉट, हैमर द आइडिया। ये जो इतने बार लब्बैक बोलना सिखाया जाता है, अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल चाहता है कि हमारे जहन, हमारे दिल और हमारे लाशऊर में ये लब्बैक बैठ जाए। और लब्बैक के मानी है मैं हाजिर हुआ, यानी जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह के दीन ने हमको बुलाया, हम उसके लिए क्या हो जाएं? हाजिर हो जाएं। मुअज्जिन अजान दे तो हम हाजिर हो जाएं, जिहाद का हुक्म हो तो हम हाजिर हो जाएं, दीन के रास्ते में कुर्बानी का हुक्म हो तो हम हाजिर हो जाएं। ये हम एक अहद करते हैं, एक वादा करते हैं हालत एहराम में उस मुकद्दस सरजमीन के ऊपर कि हे अल्लाह ताला, जब जब तेरा दीन मुझे बुलाएगा और मेरी जरूरत होगी उस वक्त मैं भागा भागा तड़प कर मैं आऊंगा। ये वादा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो दरअसल आप अपने वादे के खिलाफ वर्जी करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद में वो सही है जो हजरत हाजरा की है, जिसकी तरफ इशारा किया था मिशल भाई ने, कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने छोटे शीरख्वार बच्चे को वहां छोड़ती हैं, और जब वो भूखा होता है तो रिस्क हलाल की तलाश में सही और मरवा और सफा की 7 चक्कर काटते हैं। ये सिखाता है हजरत बीबी हाजरा का अमल हमको कि हमको हमारे रिस्क के लिए क्या करना है? जिद्दोजहद करना है, और रिस्क हलाल के लिए जिद्दोजहद करना है। ये जो 2 नंबर का जो रिस्क आ रहा है, जिसके बहुत सारे शाखें हमारे आमदनी के पाइप में लगे हुए हैं, इसको क्या करना है? खत्म करना है, बेकारी से बाहर आना है, और हमको रिस्क हलाल के लिए हमको सही करना है, जिद्दोजहद करना है। फिर मुकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज है। ये कौन सा मुकाम है? ये वही पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की दीवारों को उठाया था, और तवाफ होने के बाद में 2 रकात नमाज वहां पढ़ना है। ये दरअसल याद दहानी है हमारी कि ये जो नक्शे पा सामने हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, उस नक्शे पा की हम क्या करेंगे? पैरवी करेंगे।
उन्होंने जिस तरीके से दीन के लिए काम किया, उन्होंने जिस तरीके से कुर्बानी दी, हम इस नक्श पा के पीछे नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला से अहद करते हैं कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपना उसवा बनाएंगे और उनकी तरीके से जो है हम दीन के लिए कुर्बानी देने वाले बनेंगे। फिर इत्तिबा रसूल क्या है? देखिए, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना बहुत अफजल है, ठीक है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना सबसे अफजल तरीन इबादत। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम मिना से मुजदलिफा की तरफ जाते हैं तो जब तक मुजदलिफा नहीं पहुंचते उस वक्त तक हम मगरिब का वक्त हो भी जाए तो हम मगरिब की नमाज मुअख्खर करके इशा की नमाज के साथ में जमा कर देते हैं मुजदलिफा में। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और ऐसा ही करने का हुक्म दिया। तो बात क्या समझ में आई कि दीन नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का, और हवाए नफ्स की पैरवी का नाम दीन नहीं है। ये एक बात। तीसरी बात, हज के अरकान में एक रुकन है रमीए जमरात। हम जुमरात को क्या करते हैं? पत्थरों से मारते हैं। ये एक रस्म बन गई है। इसमें एक बहुत अहम सबक है, और वो सबक क्या है? उसमें सबक ये है कि नहीं अनिल मुनकर। ये क्या है? ये जो कंकर मारते हैं, ये क्या कंकर मारते हैं? हमको मालूम है ना कि ये हम कंकर शैतान को मारते हैं। और तारीख ये बताती है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने आकर उकसाया था, तो इसीलिए जो है हम वो शैतान को कंकर ही मारते हैं। और उसके पीछे जो रूह है, उसकी मानवियत ये है कि हम शैतान के वसवसे में नहीं आएंगे। और ये कि जब जब भी हम किसी मुनकर को होता हुआ देखेंगे, हम जब जब किसी बुराई को होता हुआ देखेंगे, हमारी जितनी वसअत है, जितनी हमारी कुदरत है, उस बुराई को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ये है रमी जमरात का जो है फलसफा, और ये है उसकी रूह। हम पत्थर तो मार के आ जाते हैं, हाजी भी बन जाते हैं, लेकिन हमारे सामने दुनिया भर की बुराइयां होती है, हमारा कभी हमारे जबान से एक लफ्ज उस बुराई के खिलाफ नहीं निकलता। उसको हाथ से रोकने की जो बात की गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो बहुत दूर की बात है। हम तो उसके खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दिल में कहीं उसका एहसास भी नहीं होता कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में एक बुराई पनप रही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये भी नहीं होता तुम्हारे दिल में तो तुमको अपने ईमान की फिक्र करना चाहिए। ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। अज़ान गिरामी, आखिरी बात कहकर जो है मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज कल अरफा यहाँ है, 9 ज़िलहज है। आज वक़ूफ़ अरफा सऊदी में है। अरफे का दिन अल्लाह ताला के नज़दीक अफजल तरीन दिन है। इस दिन का रोज़ा रखना एक ईमान वाले के लिए 2 साल की गुनाहों का कफ़ारा है। कोई जो अल्लाह ताला की इतनी जबरदस्त नेमत से अपने आप को महरूम रखना चाहता है? कोई है कि भाई हाथ उठाए? पिछले साल की तमाम गुनाह का कफ़ारा, इस साल की गुनाहों का कफ़ारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अरफे का रोजा रखता है उसके 2 साल के गुनाह जो है अल्लाह ताला माफ कर देता है। दूसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई कि ये वो दिन है, अरफे का दिन, उस दिन अल्लाह ताला अनगिनत बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। अनगिनत यानी साल में इतनी तादाद में किसी और दिन अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जितना अरफा के दिन फरमाता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम लोग जो है इस दिन का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए, अपने अहल अयाल के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की हम क्या मांगे? दुआ मांगे।
اور تیسری بات جو عرفے کے دن کی جو دعا آتی ہے جس کو ایک حدیث میں کوٹ کیا گیا ہے کہ عرفے کے دن زیادہ سے زیادہ جو چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی زیادہ سے زیادہ عرفے کے دن ہم کیا کریں؟ تسبیح کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قربانی ہم سب کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آج تو امت مسلمہ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو 2000 روپے کا حصہ نہیں لے سکتا، یا ایسے بھی نہیں ہے کہ جو 15-20 ہزار کا بکرا نہیں لے سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی قربانی تو ہم سب کریں گے، لیکن یہ قربانی جو ہے کسی اور کی ذات پر ہوتی۔ ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا 2000-15,000 روپے اپنے جیب سے لگاتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر، نیکی کے اور اللہ کے نزدیک اس مقام پر تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں کیا نہیں کرتے؟ خرچ نہیں کرتے، اس کی قربانی نہیں کرتے۔ کتنے عید قرباں آئے اور چلے گئے، نہ جانے کتنے بکروں کو بھیڑ کو ہم نے قربان کیا ہوگا۔ کیا ہم اس کے علاوہ اپنی پرسنل لائف سے کوئی چیز قربان کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سب سے۔ آج کی اس عید قربان کے موقع پر کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد لے سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس برائی کو جو ہے تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، آج سے میں یہ نہیں کروں گا، آج سے میں گٹکا نہیں کھاؤں گا، آج سے میں بیئر بار میں نہیں جاؤں گا، آج سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج سے میں چغلی غیبت نہیں کروں گا، آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میں حرام کا مال قصدن قطعاً ایک پیسہ حرام کا مال میرے آمدنی میں شامل نہیں ہوگا۔ ہے کوئی جو ایسا عہد کرنے کے لیے تیار ہے اور اس عہد کے اوپر پورا ہو؟ وہ صحیح قربانی ہے، یہ قربانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طریقے سے اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے کے لیے تیار ہے، دین کی دعوت کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے؟ ہے کوئی جو اپنا وقت لگا سکتا ہے، جو اپنا پیسہ لگا سکتا ہے، جو اپنی صلاحیتیں لگا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربان کیا، بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو۔ کیا ہم اپنی دین کے لیے، اس دین اسلام کے لیے جو غلبہ چاہتا ہے، جس کی دعوت دینے کا کام جو ہے ہمارے لیے فریضہ منصبی ہے، اور آج ہمارے اس ملک میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کوئی کرنے کے لیے یہ کام تیار؟ یہ صحیح عہد ہوگا، اور عید قرباں کا جو روح ہے وہ اسی عہد اور اسی قربانی سے پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو سمجھنے اور اس کی روح پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔